کراچی میں گارڈن پولیس اور حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی۔ شہر بھر میں کوکین اور دیگر مہلک منشیات سپلائی کرنے والی مبینہ ملزمہ انمول عرف پنکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمہ درجنوں مقدمات میں مطلوب اور طویل عرصے سے مفرور تھیں۔ کارروائی کے دوران ملزمہ کے قبضے سے ایک پسٹل، کروڑوں روپے مالیت کے کوکین، کیمیکلز اور دیگر نشہ آور اشیاء برآمد کی گئیں۔ حکام کے مطابق ملزمہ کراچی میں منشیات کی خرید و فروخت اور سپلائی کے ایک منظم نیٹ ورک کو چلا رہی تھی۔ ملزمہ 10 مقدمات میں انتہائی مطلوب تھی۔ مزید تفتیش جاری۔ کراچی میں منشیات برآمدگی اور غیر قانونی اسلحہ کیس میں گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی عدالت میں پیش۔ ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم۔ تفتیشی افسر سے 14 روز میں چالان مانگ لیا۔ کراچی پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کا ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کیے جانے کے واقعے کا نوٹس ڈی آئی جی ساؤتھ نے رپورٹ طلب کر لی۔ متعلقہ افسران کے کردار کے تعین کے لیے انکوائری کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے کہا کہ قانون اور ایس او پیز کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ بغیر ہتھکڑی ملزمہ کی پیشی کے معاملے پر ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر کماڑی پولیس کو شاباش۔ کہا کہ منشیات کا خاتمہ سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف جاری کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے۔ منشیات معاشرے کے لیے سب سے بڑا ناسور بنتی جا رہی ہے اور اس کے خاتمے کے لیے تمام اداروں کو مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت صوبے کو منشیات کے ناسور سے پاک رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ نوشہرہ میاں عیسیٰ میں باڑ لگانے کے تنازع پر خون ریز تصادم، فائرنگ کے تبادلے میں 7 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں ایک فریق کے 4 بھائی شامل، دوسرے فریق کے 3 افراد بھی فائرنگ میں جان سے گئے۔ لاشیں ڈی ایچ کیو اسپتال اور قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس منتقل۔ واقعے کی تفتیش جاری، تاحال مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے سی بی ایس نیوز کی رپورٹ گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی اور امریکی طیارے سفارتی و مذاکراتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔ پاکستان میں موجود ایرانی طیارے کا کسی فوجی ہنگامی صورتحال سے تعلق نہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے اگلے مرحلے کے پیش نظر بعض طیارے پاکستان میں موجود رہے۔ قیاس سرائیوں پر مبنی بیانیہ علاقائی امن اور استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یو اے ای نے ایران پر خفیہ حملے کیے، لاوان جزیرے کی آئل ریفائنری پر حملے سے شدید آگ بھڑک اٹھی، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے خاموشی سے جنگ میں یو اے ای کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ ایران نے جوابی کارروائی میں یو اے ای اور کویت پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ایران نے یو اے ای پر اسرائیل سے بھی زیادہ حملے کیے۔ ٹرمپ کے جنگ بندی اعلان سے قبل اپریل میں خفیہ حملہ کیا گیا۔ ایرانی عوام کے حقوق تسلیم کیے بغیر جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں۔ امریکہ کو تاخیر کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی مسلح افواج ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کو تیار ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کا بیان۔ کہا کہ غلط امریکی حکمت عملی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی۔ 14 نکاتی تجویز میں ایرانی حقوق کی منظوری ناگزیر قرار دی گئی ہے۔ ایران ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہے، دشمن حیران رہ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج قومی سلامتی کمیٹی کا میٹنگ طلب کر لی ہے۔ ایران کے خلاف دوبارہ جنگی کارروائی پر غور۔ امریکی اعلیٰ حکام اہم اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے فوجی آپشن زیر غور۔ پروجیکٹ فریڈم کی بحالی پر بھی غور متوقع۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر ذرات صرف امریکہ اور چین ہی بازیافت قرار کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف انہی 2 ملکوں کے پاس اس بات کی صلاحیت موجود ہے۔ امریکی سیاست میں ایران جنگ کے معاملے پر شدید کشیدگی بڑھ گئی۔ سینیٹر چک شومر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ ایران کے خلاف کارروائیاں غیر قانونی اور مہنگی جنگ ہے۔ ڈیموکریٹس نے فوجی انخلا کے لیے وار پاورز ریزولوشن پر ووٹنگ کا اعلان کیا۔ واضح حکمت عملی کے بغیر امریکی فوج کو جنگ میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ اگر ریپبلکنز نے مخالفت کی تو وہ ٹرمپ کی جنگ کے ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔
ओपेक की तेल पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। आपने गुर्बत की बंदिश से ओपेक पैदावार में 8,30,000 बैरल यौमिया कमी। कुवैत ने अप्रैल में 0 खाम तेल बरामद किया। पैदावार शदीद मुतासर। सऊदी अरब की तेल पैदावार 70 लाख बैरल यौमिया तक गिर गई। यूएई वाहिद खलीजी मुल्क जिसकी तेल पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वेनेजुएला और लीबिया ने अप्रैल में तेल पैदावार बढ़ा दी। अमेरिका का पासदारान इनकलाब पर दबाव बढ़ाने का फैसला। मालूमात देने वाले के लिए $1.5 करोड़ इनाम का ऐलान। अमेरिका को ईरानी मालियाती नेटवर्क की तफसीलात दरकार हैं। इनाम का ऐलान स्टेट डिपार्टमेंट के इंसाफ प्रोग्राम के तहत किया गया। पासदारान इनकलाब के फंडिंग ज़राए की तलाश शुरू। अमेरिका की ईरान पर मुमकिना मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश। हर 4 में से एक अमरीकी ने ट्रंप हमला जाली करार दे दिया। खबरों और मालूमाती वेबसाइट्स की रेटिंग जारी करने वाले इदारे न्यूज़ गार्ड ने 28 अप्रैल से 4 मई तक सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 1/3 डेमोक्रेट्स ने हिस्सा लिया। 18 से 29 साल की उम्र के अमरीकियों ने कातिलाना हमला जाली करार दिया। 32% अमरीकी इस बारे में फैसला नहीं कर पाए कि हमला जाली था या असली। तो दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने साजिशी नजरियात मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रंप पर हमला जाली समझने वाले बेवकूफ हैं। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त। बरतानवी हुकूमत शदीद बहरान का शिकार। कई वज़रा मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म के रेस्टोरेंट पर इस्तीफ़े का दबाव बढ़ गया। डेविड लेमी, एविड कॉपर और शबाना महमूद ने भी इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। 70 लेबर अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म के रेस्टोरेंट के खिलाफ मैदान में आ गए। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुस्ताफ़ी। मज़ीद वज़रा के इस्तीफ़ों का भी इम्कान। के रेस्टोरेंट ने मुस्ताफ़ी मुआविनीन की जगह नई तकर्रियाँ कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद के ज़ख़ायर की सूरत हाल पर अहम इजलास। मुल्क में खाद की दस्तयाबी और ज़रई ज़रूरियात का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किसानों को बरवक्त खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि खरीफ और रबी सीज़न के लिए खाद के वाफर ज़ख़ायर बरकरार रखे जाएँ। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़रई शोबे की ज़रूरियात पूरी करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। खाद की मुतबादिल फराहमी के लिए वस्ती एशियाई ममालिक से मनसूबाबंदी की जाए। मुकामी सतह पर खाद की पैदावार बढ़ाने के लिए नए प्लांट्स के मनसूबों पर काम तेज किया जाए। मुताल्लिक़ा वज़ारतों और इदारों को खाद की फराहमी की मुसलसल निगरानी की हिदायत। हुकूमत ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की नई दावत दे दी। वज़ीर आज़म का महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम। अचकज़ई ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात से माज़रत कर ली। अपोजिशन लीडर की गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात की तजवीज़। राना सनाउल्लाह की रिहाइश गाह पर मुलाकात का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन में सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब बनाने को अव्वलीन तरजीह करार दिया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। ख़वातीन के किरदार पर जोर। कहा कि ख़वातीन को बिला खौफ व ख़तर घर से बाहर निकलने का माहौल फराहम किया जाएगा। सियासत ने ख़वातीन की बढ़ती हुई शमूलियत को तब्दीली की अलामत करार दिया। ख़वातीन को हरास न करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बनाने का अज़्म है। ऑनलाइन हरासमेंट और डिजिटल बुलिंग पर सिस्टम बना रही हूँ। शिकायत करने वालों की मालूमात खुफिया रखी जाएगी। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज। आज खैरपुर के अवाम के लिए अहम दिन है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि खित्ते की कशीदगी के बायस पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। विफाक और सिंध हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं। सिंध की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का महंगाई के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद में 15 मई को बड़ा एहतजाज करने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को महंगाई की बड़ी वजह करार दे दिया।
टैक्सेस और लीवी के बायस पेट्रोल की कीमत 401 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। बिजली और गैस पर फिक्स चार्जेस और भारी टैक्सेस पर तनकीद। IPPs मुआहदों और हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान में यकुम ज़िलहज 18 मई बरोज़ पीर और ईद उल अज़हा 27 मई को होने का इम्कान। स्पार्को ने ज़िलहज का चांद की तारीख से मुतालिक पेशगोई कर दी। कहा कि 17 मई को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी। 17 मई की शाम ज़िलहज का चांद नज़र आने का इम्कान रोशन है। ज़िलक़द के इख्तिताम और ज़िलहज के आगाज़ का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मुल्क भर से मौसूल शहादतों की बुनियाद पर फैसला करेगी। रेंजर्स की बल्दिया टाउन में बड़ी कार्रवाई। लालू गिरोह के 4 कारंदे गिरफ्तार। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस गिरोह का सरगना लाल मोहम्मद उर्फ लालू भी गिरफ्तार। पकड़े गए मुल्ज़िमान औरंगी, बल्दिया, गुलशन गाजी और सईदाबाद में वारदातों में मुलव्वस हैं। गिरोह ने शहरियों से मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और लाखों रुपए छीनने का एतराफ़ कर लिया। CCTV फुटेज में होटल डकैती की वारदात भी सामने आ गई। मुल्ज़िमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची में FIA की बड़ी कार्रवाई। सरकारी ज़मीनें वागुजार करा ली गईं। गुलाम हुसैन कासिम क्वार्टर समेत कई मुकामात से गैर कानूनी कब्जे ख़त्म। जाली दस्तावेजात पर कब्जा करने वाले लैंड माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। एवैक्यू ट्रस्ट की कीमती अमलाक खाली करा के इदारों के हवाले। FIA ने कब्जा माफिया के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों का इंदिया दे दिया। सरकारी अमलाक पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। थर पार्क के इलाके नंगर पार्कर में गिरदोनवाह में 2 रोज़ में 13 मोर मर गए। असिस्टेंट कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ ने बताया कि मोरों की हलाकतें बीमारी से नहीं, हीट स्ट्रोक से हो रही हैं। पानी की किल्लत और शदीद गर्मी ने परिंदों की हालत तशवीशनाक बना दी। बीमार मोरों को बचाने के लिए मल्टी वाइटामिन की फराहमी शुरू कर दी है। मणिपुर में अलहदगी पसंदों के आसाम राइफल्स कैंप पर कब्जे की वीडियो वायरल। मुसल्ला गिरोह को भारतीय फौजी कैंप में दाखिल होते देखा गया। वीडियो में अलहदगी पसंद तहरीक के मुसल्ला अरकान को आज़ादी से घूमते फिरते देखा जा सकता है। भारतीय क़यादत पर तनकीद। वीडियो में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ नारे। दावा किया गया कि भारतीय फौजी बगैर लड़े कैंप छोड़कर पीछे हट गए। वाक़े पर मणिपुर की सूरत हाल और सिक्योरिटी पर नए सवालात उठ गए। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए तरने वाला साबित हुआ। बंगाल टाइगर्स ने बआसानी 104 रन से शिकस्त दे दी। मीरपुर में खेले गए मैच में कौमी टीम 268 रन के ताक़ुब में 163 रन पर ढेर हो गई। अब्दुल्ला फजल 66 रन बनाकर नुमायां। दीगर कोई बल्लेबाज खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सका। सलमान अली आगा 26, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और आज़ान ओवैस 15-15 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश की जानिब से नाहिद राना की तबाहकुन बॉलिंग 5 शिकार किए। तबीजुल सलाम और तस्कीन अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 100 विकेटें भी मुकम्मल करी।